The UPA at the center and the Congress government here have also played with the issues of national security. Lot of boundary pillars are missing on the border with Myanmar. आप भली भांति जानते हैं, दे रहे हैं, अड़ोस पड़ोस जो मांगे ले लो, कोई पूछने वाला नहीं है। उधर चाइना, इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश, लूटो, कौन पूछने वाला है? क्या कोई देश ऐसे चल सकता है भाई? नहीं, आपके घर की कोई चीज ले जाए, आप लेने देंगे क्या? कोई चीज उसको हाथ लगाने देंगे क्या? ये लोग चारों तरफ आओ आओ, स्वागत है, ले जाओ। हम क्यों संभाले, बेकार में हमारा टाइम जाता है, ले जाओ। भाइयों बहनों, ये बांटने वाले, देने वाले, बर्बाद करने वाले लोगों ने हिंदुस्तान को तबाह करके रखा हुआ है। Without taking parliament into confidence, without taking to the local representatives, the Chief Minister of Manipur signed a paper for changing the boundary with Myanmar. This, he says, were done in consultation with the Prime Minister and the Union Home Ministry. I do understand that they have no concern for integrity of the nation. But I fail to understand who has given them such powers. As if this was not enough, the wire fencing has been done kilometers within the Indian territory in the Mora sector. The result is that a huge part of Indian territory has been left off. Villages, sport fields, churches, which were part of Manipur and India, have gone to our neighboring countries. It is anti-national. It is anti-people. Our forefathers have protected our territory with their sweat and blood. We can't let our territory go like this. Our party president, Shri Rajnath Singh Ji, had written a letter on this issue to Honorable Prime Minister in December 2013. Development administration has totally collapsed here. There is no electricity. There is no water. It is so surprised that the national capital, where Prime Minister sits, also had no water, no electricity, and this area which he represents has the similar face. What a government! This is not a coincidence. It is the result of coincidence of bad governance. Similarly, the health services and education setup is not existent in Manipur. Public distribution system has failed. Much hype. Narega had failed in Manipur. Panchayat Raj system is not working effectively. Panchayat elections pass, but no money is transferred to them. There is just no employment generation. Certainly, sponsor schemes are only on paper. All money coming from the center is only being encashed to fill the lockers of the ruling party. More than 6.60 lakh people are registered in
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये आईटी का हब क्यों नहीं बन सकता है। मैं कल हिंदुस्तान के जो आईटी वर्ल्ड के लोग हैं उनके साथ एक सेमिनार में मैं भाषण कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि अमेरिका आउटसोर्स करे, काम बेंगलोर में होता है, हैदराबाद में होता है, पुणे में होता है, चेन्नई में होता है। मैंने कहा क्या जरूरत है भाई कि अमेरिका का आउटसोर्स किया हुआ काम या दुनिया के किसी देश का आउटसोर्स किया हुआ काम इन बड़े बड़े शहरों में ही करना पड़े, सारे देश के नौजवानों को रोजगार के लिए वहां जाना पड़े। क्या ये आउटसोर्स का काम छोटे छोटे शहरों में नहीं हो सकता है? ये रिमोट एरिया नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में नहीं हो सकता है? क्या इम्फाल में वो काम खड़ा नहीं हो सकता है? यही मणिपुर के अंदर यहां के नौजवानों को इस प्रकार के यूनिट प्रस्तावित करके रोजगार नहीं दिया जा सकता है? और अगर यहां देंगे तो इतना कम खर्चे में होगा कि कंपनियों को ज्यादा मुनाफा होगा। यहां के नौजवान को अपना गांव घर छोड़ करके जाना नहीं पड़ेगा, बूढ़े मां बाप को छोड़ करके जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, उन्हें समझ नहीं आता है कि लोगों को रोजगार देने के तरीके क्या होते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं पहली बार आपको बताना चाहता हूं, आपको जान करके हैरानी होगी, मैंने नॉर्थ ईस्ट के सभी चीफ मिनिस्टर को एक रिक्वेस्ट की थी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मैं गुजरात में इस नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को कोई न कोई मदद करना चाहता हूं। मैं गुजरात में मैं उनको रोजगार देना चाहता हूं। मैंने सामने से कहा था दोस्तों, मैंने कहा था आपके यहां पुलिस में जो महिलाएं हैं, एवरी ईयर 2 साल के लिए आप एक एक राज्य से 200 महिला पुलिस गुजरात में डेपुटेशन पर भेजिए। दे विल स्टे देयर फॉर 2 years. Then another batch will come, then next batch will come. From each state, even from Manipur, 200 women police can come to my state. Gujarat government will take care of them, and we will pay for them. We will provide the hospitality arrangements. होगा बहुत बड़ा फायदा अगर इन 8 राज्यों से 200 1600 लोग 1600 विमेन पुलिस मेरे राज्य में आती है। दे आर इंग्लिश स्पीकिंग। मेरे टूरिज्म को बहुत लाभ होगा, आपके लोगों को रोजगार मिलेगा, और वो जो 200 वापिस आएंगे तो हर एक का गुजरात में 5 परिवार 10 परिवार से परिचय हुआ होगा। वो परिवार यहां टूरिस्ट के नाते आएंगे। हर वर्ष इनके माध्यम से हजारों टूरिस्ट गुजरात से नॉर्थ ईस्ट आ सकते हैं। यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। आप कितना सिंपल सॉल्यूशन मैंने दिया, लेकिन मेरे दुख के साथ मुझे कहना है, कांग्रेस की एक भी सरकार ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मेरी ऑफर आज भी खुली है। मैं फिर से यहां से कहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की सभी गवर्नमेंट्स 200 महिला पुलिस को गुजरात में डेपुटेशन पर भेजे। 2 साल के लिए हम रखेंगे, फिर 2 साल के बाद नया बैच आए, उनका सारा खर्चा हम करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं रोजगार की कितनी संभावनाएं बढ़ जाएगी। आपको गुजरात अपना लगेगा, गुजरात वालों को मणिपुर अपना लगेगा, नागालैंड अपना लगेगा, मिजोरम अपना लगेगा, मेघालय अपना लगेगा। नेशनल इंटीग्रेशन का एक अद्भुत काम होगा। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार, न इनके पास इस प्रकार की सोच है, न ऐसा कुछ करने का इनका इरादा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी सब विकास की योजना में नौजवान को
मुझे सब लोग बता रहे थे साहब यहां सामने ही नेशनल हाईवे 53 कितने साल हो गए लटका पड़ा है, नहीं हो रहा है। इसको पूरा करना है कि नहीं करना है भैया? नेशनल हाईवे 53 का काम होना चाहिए। जरा बोलो तो होना चाहिए, होना चाहिए। ये लोग कर पाएंगे क्या? ये लोग कर पाएंगे? मुझे काम देने की तैयारी है, मुझे काम देने की तैयारी है, मैं करके दूंगा भाइयों बहनों, आप हमें मौका दीजिए। ऐसे क्या रुपये बर्बाद करते हैं क्या भाइयों बहनों? कोई काम का महत्व समझते नहीं है लोग। वो अपनी राजनीति, पैसे कमाना, इन्हीं कारोबार से ऊपर नहीं उठते हैं और उसी के कारण भाइयों बहनों हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। Similarly, with the spirit of sports, Manipur can be made the powerhouse of sports in the country. There is natural talent among its people in hockey, football, boxing and archery.